Hello students, welcome again. Yesterday we had done the political causes of the revolt of 1857. Let's discuss others. Next is economic causes. This question can be asked in another way like uh, how did the economic policies of the British adversely affect the Indian economy? Answer will be same. It asks the economic causes, how the economic exploitation done by the Britishers led to the revolt of 1857. The policy of exploitation and the destruction of the traditional Indian economic structure by the British, it caused widespread resentment among Indians. First of all, zamindari system exploited the peasants who were forced to grow only those crops that the British industries required. It means that I had told you earlier that British introduced many revenue system to collect the revenue. Among these, a zamindari system was one of them, like the permanent settlement, also called the zamindari bandobast. And under this, they collected the revenue from the peasants, and if they were unable to pay the revenue, they were exploited. And one thing more, they forced the farmers to grow only those crops that the British industries required. जिन चीज़ों की ब्रिटिश इंडस्ट्री में ज़रूरत थी एज अ रॉ मटेरियल, तो उन्होंने इंडियन फार्मर्स को वही क्रॉप ग्रो करने के लिए फोर्स किया. And after that they bought it from the farmers at a very low price, and then they again sell it at very high prices. And they were tortured or jailed on failure to pay the revenue on time. If the farmers were not able to pay the revenue on time, there was a lots of exploitation and torture done by the Britishers. And many times they evicted them from their land. उन्हीं की लैंड से बेदखल किया जाता था अगर वो लैंड रेवेन्यू नहीं देती थी. Industrial goods like the textiles from the Britain flooded the Indian market. इंडस्ट्रियल गुड्स जो भी टेक्सटाइल, क्योंकि इससे पहले क्या था, इंडियन टेक्सटाइल क्या था, दैट वाज इन ग्रेट डिमांड इन द वर्ल्ड मार्केट. But British wanted their own benefits, so they started their textile industry in the Britain, and they took the raw material from the India and flourished their own industry at the cost of the Indian industry. इंडिया की जो उन्होंने बेस के ऊपर अपनी इंडस्ट्रीज़ को फ्लॉरिश किया. एंड दे डिस्ट्रॉय द Indian industries and made the artisans and peasants unemployed, because when they produced their product in the industries, machine made goods, they came to India. It has a variety, because machine made goods are different designs and varieties there, and that attracted the people also. But they charged the high rate from the Indians, and there was a they were forced to, Indian industry, they can't sell their product, so it ultimately destroyed the Indian industry. And whenever the princely states were annexed, you know that the Britishers annexed our Indian states, and after the annexation they got the rent free land. They didn't pay any rent to that kingdom or that ruler of that kingdom. And common people, how common people faced, they were become unemployed. And unemployed means when they have no job, no income. No income means poverty. It led to the poverty. And when Awadh was occupied by the British, Nawab's officials were dismissed and his army was disbanded. In political causes, under the subsidiary alliance, we had learned that the Awadh, which was allied of the Britishers, they annexed that kingdom also, and the many of the soldiers or the persons, officials, they become unemployed because 60,000 soldiers lost their livelihood. So these were the economic causes that led to the revolt of 1857. Let's revise it. First of all, the policy of economic exploitation and destruction of traditional Indian economic structure.
it created the widespread resentment among Indians. Second, the zamindari system exploited the peasants who were forced to grow only those crops that the British industries required. And third one, they were tortured or failed to pay if they enable failure to pay the revenue. Next is industrial goods like textiles from Britain flooded the Indian market. It means they exploited our Indian in two ways. First, they bought the raw material from the cheap rate, and then they sold their own product in our country. Means they exploited in a two ways. पहले तो हमें उन्होंने फोर्स किया कि सिर्फ वही क्रॉप्स ग्रो करें जो उनको चाहिए. सेकंड, उन्होंने हमसे वो लो रेट पे ख़रीदी और फिर अपनी कंट्री में इंडस्ट्रीज़ में बने प्रोडक्ट को इंडियन को ख़रीदने के लिए मजबूर किया. सो एंड which state they annexed, they got the rent free land, and people where the different officials were working that in that kingdom, they dismissed them, and the people become the unemployed, बेरोज़गार हो गए, and it ultimately led to the poverty. एग्जाम्पल भी दे सकते हो आप यहाँ, like the Awadh. When Awadh was occupied, the Nawab's officials were dismissed and his army was disbanded. उसकी आर्मी को कैंसिल कर दिया और 60,000 जो सोल्जर्स थे उन्होंने अपनी लाइवलीहुड को खो दिया था. So next is social and religious causes. How social and religious reforms done by the Britishers became the cause for the revolt of 1857. Like Britishers, they introduced many reforms in India, not for their their own benefits, because they had seen the many evils in the society. Some things they had good done, but our conservative peoples, they believed that they are interfering in our customs. इसका मतलब क्या कि बहुत सारे ऐसे उन्होंने रिफॉर्म्स भी किए हमारी सोसाइटी के अंदर जो कुछ सोशल एविल्स थी. इंडियन एडुकेटेड के साथ मिलकर उन्होंने बहुत सारी ऐसी जो थी उनको रिमूव भी किया. लेकिन जो हमारे कट्टरपंथी कंजर्वेटिव पीपल थे जो अपने धर्म में इतना विश्वास कर, उन्हें कई बार ये लगता था कि ये हमारे धर्म के अंदर इंटरफेरेंस कर रहे हैं और उन्हें चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो ब्रिटिशर्स ने अपने बेनिफिट के लिए चेंज करना चाहा. कैसे? The first point is the social reforms by the Britishers were considered an interference in the customs and tradition of the Hindus. Many Indians opposed the introduction of Western education and the conversion of Indian to the Christianity. क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में एजुकेशन तो शुरू की, लेकिन उन्होंने प्रेफरेंस किसको दिया था? वेस्टर्न एजुकेशन को. हालांकि उन्होंने इंडियन एजुकेशन बिगनिंग में दी, बट देयर मेन मोटिव वाज टू एक्सपेंड देयर ऑन कल्चर. अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे थे एंड दे फोर्स द इंडियन पीपल टू चेंज देयर रिलीजन. दे वांटेड टू कन्वर्ट द हिंदू इनटू द क्रिश्चियनिटी. और इसके लिए उन्होंने एक लॉ बना दिया. क्या था वो लॉ? द हिंदू लॉ ऑफ प्रॉपर्टी वॉज चेंज टू अनेबल अ क्रिश्चियन कन्वर्ट टू रिसीव हिज शेयर ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. इसका क्या मतलब हुआ? व्हाट वाज द हिंदू लॉ ऑफ प्रॉपर्टी? इसके अंदर उन्होंने ये मेंशन कर दिया कि जो लोग क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट करेंगे, कि ईसाई धर्म को मानेंगे, हमारे जैसे क्रिश्चियन बनेंगे, सिर्फ उन्हीं को अपनी एंसेस्टर मतलब कि अपने पूर्वजों की जायदाद में से हिस्सा मिलेगा. अदरवाइज़ वो सारी प्रॉपर्टी किसके पास चली जाएगी? ब्रिटिशर्स के. इट मीन्स द मेन मोटिव वाज देयर ऑन प्रॉफिट. अपने प्रॉफिट के लिए वो हर कुछ करते थे. उन्होंने इंडियन इंडस्ट्रीज़ को एक्सप्लॉइट किया, इंडियन जो कस्टम्स से उनमें इंटरफेयर भी करा और इंडियन के रिलीजन को चेंज करने की भी कोशिश की. मतलब कि वो अपने आप को सुपीरियर मानते थे, अपना कल्चर अपने रिलीजन को प्रमोट करना चाहते थे. तो उन्होंने एक लॉ बनाया, हिंदू लॉ ऑफ प्रॉपर्टी. व्हाट वाज दैट? इट अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ओनली दोज इंडियंस those have
कन्वर्टेड टू क्रिश्चियन कैन गेट द शेयर इन देयर एंसेस्टर प्रॉपर्टीज़, कि अपने पूर्वजों की प्रॉपर्टी से सिर्फ उन्हीं को हिस्सा मिलेगा। तो इससे क्या इंडियन खुश होंगे या नाराज़ होंगे? ऑब्वियसली दे इट क्रिएटेड रिसेंटमेंट अमंग द इंडियंस। नेक्स्ट क्या था? द स्प्रेड ऑफ रेलवे created further fear among the poor and the illiterate sections of the society that would be they would lose their caste। उसके बाद उन्होंने क्या किया? रेलवे इंट्रोड्यूस की थी, जो कि बहुत अब चाहे इंडिया के लिए वो एक डेवलपमेंट है कि इंडिया में रेलवे इंट्रोड्यूस ब्रिटिशर्स ने किया था, लेकिन उस टाइम उन्होंने इंडिया के बेनिफिट के लिए नहीं किया था कि इंडिया के लोगों को फ़ायदा मिलेगा, कि वो आने जाने में उन्हें सहूलियत होगी। उन्होंने रेलवे इंट्रोड्यूस किया था अपने बेनिफिट के लिए, कि उन्हें कमर्शियल पर्पस भी था, पॉलिटिकल भी था, डिफेंस पर्पस के लिए भी था, कि अगर एक जगह से उन्होंने अपनी आर्मी को भेजना है, अपने प्रोडक्ट भेजना है, तो इसके लिए उन्होंने रेलवे इंट्रोड्यूस किया था। बट इससे भी उन्होंने इंडियंस के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया था, और इंडियंस को अपने डर लगता था कि इससे अगर सभी कास्ट के लोग एक साथ सफ़र करेंगे तो इससे हमारा धर्म, क्योंकि उस टाइम जो था इंडिया के अंदर कास्ट सिस्टम भी बहुत था, जो अपर कास्ट के लोग थे वो लोअर कास्ट के साथ बैठना पसंद नहीं करते थे, तो वो उनमें उन्हें लगता था कि ये हमारी कास्ट भी चेंज कर देंगे और हम अपनी कास्ट को ही खो देंगे। तो ऐसे ही उन्होंने बहुत सारी रूमर्स भी फैली। एक रूमर अफवाह क्या थी? वन सच रूमर वॉज दैट द होल इंडियन पॉपुलेशन वुड लूज देयर कास्ट एज द ब्रिटिशर हैड सेंट कार्टलोड्स ऑफ बोन डस्ट विच वॉज मिक्सड विद द फ्लोर एंड मिठाई। क्या था? कहते उन्होंने जो कार्ड्स होते हैं वो भर भर के क्या बोन डस्ट के हड्डियों का चूरा भेजा, और वो सारी मिठाइयों के अंदर मिक्स किया गया है, आटे में मिक्स कर दिया और मिठाई। तो इससे क्या मीन्स कि वो हमारी कास्ट बदल रहे हैं, हमारा मतलब धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो ऐसी ऐसी अफवाहें लोगों के मन में डर पैदा हो गया कि ब्रिटिशर्स हमारा धर्म और हमारी कास्ट जो बदलने की कोशिश कर रहे हैं, अपने जैसा बनाने के, हमारा मतलब धर्म हमसे छीन रहे हैं। और जब रेलवे इंट्रोड्यूस किया तो उसमें भी उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया। कैसे? इंडियंस वर नॉट अलाउड टू ट्रेवल इन द फर्स्ट क्लास ट्रेन कंपार्टमेंट्स। जो बढ़िया जो ए क्लास वाले कंपार्टमेंट आज भी आप लोग जाते हैं, रिजर्वेशन करवाते हैं, तो जो ए क्लास कंपार्टमेंट है दे वर नॉट इंडियंस वर नॉट अलाउड टू सिट देयर। सिर्फ वो किसके लिए थे रिजर्व? ओनली फॉर द ब्रिटिशर्स। द कंजर्वेटिव इंडियंस वर अलार्म्ड बाय द रैपिड स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न कल्चर एंड इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। Moreover, the British looked down upon the Indians and follow a policy of racial discrimination। जो सबसे बड़ी बात थी क्या था कि ब्रिटिशर्स अपने आप को सुपीरियर मानते थे, कि हम जो यूरोपियंस हैं वो वर्ल्ड के सबसे सिविलाइज्ड जो हैं, वो सिविलाइजेशन उनकी है। वो जेंटलमैन कहते थे कि हमें गॉड ने यहाँ अर्थ के ऊपर भेजा है कि तुम जैसे जो इलिटरेट पीपल या इन्फीरियर पीपल हैं उन्हें जो है अनसिविलाइज्ड पीपल कहते थे कि तुम लोग तो असभ्य हो, अनसिविलाइज्ड हो, तुम्हें सिविलाइज्ड करने के लिए हमें गॉड ने यहाँ भेजा है। हम जेंटलमैन हैं, हम सुपीरियर हैं, और तुम लोग क्या हो? इन्फीरियर हो, हमसे बहुत डाउन हो। तो वो हमेशा इंडियन के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ब्लैक पीपल्स हर जगह पर, कई जगह पर तो उन्होंने बोर्ड लगाए थे दैट इंडियंस वर नॉट अलाउड। इवन कि इंडियंस के लिए वो गलत वर्ड भी यूज़ करते थे। किसी होटल के आगे लिखा था डॉग्स आर नॉट अलाउड, इंडियन डॉग्स, मीन्स दे एक्सप्लॉइटेड अवर फीलिंग्स ऑल्सो, सेंटिमेंट्स। They advocate a judicial system based on the principle of equality, but in actual practice it was biased। जो जुडिशियल सिस्टम, कहने को तो वो कोर्ट जो न्याय व्यवस्था थी उनकी, वो कहते थे कि हम इक्वलिटी से करेंगे, बट वहाँ पर भी वो क्या होते थे? बाइस्ड होते थे। बाइस्ड का मतलब कि अपने अकॉर्डिंगली रूल्स को फॉलो करना, कि अगर इंडियन ने वही क्राइम किया तो उन्हें इतनी बड़ी सज़ा दे देना, और सेम क्राइम के लिए उससे भी बड़ा क्राइम अगर ब्रिटिशर्स ने किया है तो उन्हें ऐसे ही एक कुछ कहकर या थोड़ा बहुत फाइन लगाकर उन्हें माफ़ कर देना। तो इस तरह से उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया। दैट क्रिएटेड द रिसेंटमेंट अमंग द इंडियन पीपल एंड इट कॉजेज टू द रिवोल्ट ऑफ 1857।
नेक्स्ट इज मिलिट्री कॉजेज। इसका क्वेश्चन कैसे बन सकता है? वाई डिड द इंडियन सोल्जर्स स्टार्टेड द रिवोल्ट, या हाउ दे वर ह्यूमिलेटेड बाय द ब्रिटिशर्स, कि कैसे जो सोल्जर्स थे, जो कि इंडियन सोल्जर्स थे और ब्रिटिश की आर्मी में रिक्रूटेड थे, उन्होंने क्यों इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था। The Sepoy had helped the British to establish their empire in India, but instead of receiving awards or promotion, they were humiliated by the Britishers. आपको ये तो पता है कि बिगनिंग से ही जब इंडिया के ऊपर कब्जा करना शुरू किया ब्रिटिशर्स ने, तो उन्होंने अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग किया। तो आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्हें और सोल्जर्स भी चाहिए थे, तो उन्होंने बहुत सारे इंडियंस को ज़बरदस्ती भर्ती भी किया, उन्हें ट्रेन किया। और इट मीन्स कि हमारे इंडियन सोल्जर्स ने उन्हें कहीं ना कहीं मदद की अपना एम्पायर सेट करने के लिए। और बहुत बार उनके द्वारा जो बैटल्स होती थी वहाँ इंडियन सोल्जर्स मरे भी, और उन्होंने अपनी बहादुरी भी दिखाई और बिना अपनी जान की परवाह किए। लेकिन उन्हें आज देखो, अगर आर्मी के अंदर, हमारी डिफेंस आर्मी के अंदर कोई भी सोल्जर्स वहाँ पर अपनी ब्रेवरी शो करता है, तो उन्हें सम्मानित किया जाता है, अवार्ड दिए जाते हैं, रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं अलग अलग उनको, ताकि वो अपने आप को भी प्राउड, हम भी प्राउड फील करते हैं और वो उन्हें भी प्राउड होता है कि हमने देश के लिए कुछ किया। तो जब इंडियंस भी उनके लिए लड़ रहे थे, लेकिन उन्हें कभी भी उस बात के लिए सम्मानित नहीं किया गया, ना ही उन्हें कोई अवार्ड दिया गया, ना प्रमोशन, बल्कि उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन था, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। कैसे? देयर वर डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द इंडियन एंड द ब्रिटिश सोल्जर्स। दोनों ही सोल्जर्स उनकी आर्मी में थे, इंडियन भी थे, ब्रिटिशर्स भी थे, लेकिन हमेशा वो मैक्सिमम पे किसको करते थे? यूरोपियंस को, जो उनके थे, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज़ लोग थे, उन्हें तो ज़्यादा सैलरी दी जाती थी, लेकिन इंडियन को बहुत कम पे दी जाती थी। द हाईएस्ट पे गिवन टू एन इंडियन सिपोई एज सूबेदार वॉज लेस देन द मिनिमम पे ऑफ द यूरोपियन रिक्रूट। और इसके अलावा उन्होंने और क्या कर दिया? एक एक्ट पास किया था। क्या था वो एक्ट और कब पास हुआ था? द एक्ट ऑफ 1856 मेड इट कंपल्सरी फॉर न्यू इंडियन रिक्रूट टू सर्व ओवरसीज। मीन्स उन्होंने हर तरह से इंडिया के साथ जो था, इंडियन पीपल के साथ इनजस्टिस और एक्सप्लॉयटेशन किया। उन्हें पता था कि इंडियन लोग अपने धर्म के प्रति कितने ज़्यादा मतलब समर्पित हैं, और उस टाइम हमारे इंडियंस को ये लगता था कि अगर हम समुंदर पार जा रहे हैं, आज तो लोग विदेशों में जाना, बड़ा फ़ॉरेन में जाना अपना प्रेस्टीज समझते हैं, हर कोई जाना चाहता है, लेकिन उस टाइम उन्हें लगता था समुंदर पार जाना मीन्स कि हम अपनी कास्ट और अपना धर्म को खो देंगे। और जब ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट पास किया 1856 के अंदर, ये ज़रूरी कर दिया, कंपलसरी कर दिया कि जो भी इंडियन सोल्जर्स भर्ती किए जाएंगे, सबसे पहले उन्हें अपनी जॉब जो कुछ टाइम के लिए कहाँ करनी पड़ेगी? ओवरसीज, समुंदर पर, उनकी कंट्री में। So it hurt the feelings of the soldiers, as Hindu believed that overseas travel would lead to the loss of कास्ट, कि अगर इस तरह से वो अपनी कास्ट को खो देंगे, अपने धर्म को खो देंगे। तो ये सारे रीज़न थे जिस वजह से इंडियन सोल्जर जो थे वो नाखुश थे और नाराज़ थे। सबसे पहले क्या था? सिपोई हैड हेल्प द ब्रिटिशर्स टू एस्टेब्लिश देयर एम्पायर, बट दे नेवर रिसीव अवार्ड और प्रमोशन। कभी भी उन्हें प्रमोट नहीं किया गया, एंड दे वर ऑलवेज ह्यूमिलेटेड बाय द ब्रिटिशर्स। Next, there was discrimination between the Indian and the British soldiers. Highest pay given to an Indian sepoy एज एन सूबेदार मीन्स कि जो ब्रिटिशर्स के सबसे नीचे वाली पोस्ट होती थी, वो इंडियन की सबसे हाई पोस्ट वाले को सैलरी दी जाती थी। And then they passed an act in 1856 that made compulsory for the Indian soldiers recruit to serve overseas. So it hurt the feelings of the Indian soldiers. So they took part in the रिवोल्ट। इसके अलावा नेक्स्ट जो हम करेंगे इमीडिएट कॉज, वो भी सोल्जर्स ने किया था कि तात्कालीन कार कि एकदम से ऐसा क्या हुआ कि जब वो आंदोलन की शुरुआत हो गई थी।
उसे कहते हैं इमीडिएट कॉजेज़, तात्कालीन, मतलब उसी टाइम ऑन द स्पॉट ऐसा क्या घटना हुई थी जिस वजह से आंदोलन की शुरुआत हुई थी। दैट वॉज द कार्ट्रिजेस ऑफ न्यू एनफील्ड राइफल had a grease paper cover which had to be bitten off before the cartridge was loaded into the rifle। उस टाइम क्या था, ब्रिटिशर्स ने अपनी आर्मी के अंदर जो थे नए उन्होंने कारतूस इंट्रोड्यूस किए थे। नई राइफ़ल जो आई थी, तो राइफ़ल के अंदर जो आगे कारतूस भरा जाता है जिससे चलाना होता है, उन कारतूस को कार्ट्रिजेस को लोड करने से पहले क्या था, अपने मुंह से टीथ से उसके सील को काटना पड़ता था। और जो उसके ऊपर वो पेपर, ग्रीस पेपर लगा हुआ था, ये अफवाह थी कि वो ग्रीस पेपर जो था वो किससे बना था। इट वॉज द कंपोज ऑफ बीफ एंड पिग फैट, मीन्स काऊ और पिग के मांस से बना हुआ है, उनसे। और आपको पता है कि ये दोनों ही हिंदू और मुस्लिम के सेक्रेड एनिमल्स हैं। हिंदू लोग गाय की पूजा करते हैं और मुस्लिम लोग पिग की करते हैं। अब जिस एनिमल की वो पूजा कर रहे हैं उसी को मार कर उसी से वो जो पेपर बनाया, अब उसको वो मुंह में डालेंगे तो उन्हें लगता कि हम अपने धर्म को तोड़ रहे हैं, तो उन्होंने इस ग्रीस पेपर को, इन कार्ट्रिजेस को यूज़ करने से रिफ्यूज़ कर दिया था। So it was said that grease composed of beef and pig fat, both the Hindu and the Muslim refused to use them because cow is sacred to the Hindu and pig is detestable to the Muslims. So this angered the इंडियन सिपॉइस। वो गुस्से में आ गए कि अब तो ब्रिटिशर्स ने बहुत बुरा करा हमारे साथ, कि हमारे धर्म के ख़िलाफ़ वो हर काम वो कर रहे हैं। एंड देन ऑन March 29, 1857, at बैरकपुर नियर कैलकटा, मंगल पांडे, a young Indian sepoy from the Bengal regiment, refused to use the grease cartridges and shot down his sergeant। क्या हुआ था, कैलकटा में, बंगाल जो सबसे पहले उन्होंने जीता था, वहाँ पर जो उन्होंने अपने रेजिमेंट आर्मी सेटअप की थी, तो वहाँ पर सबसे पहले उन्होंने इन राइफ़ल्स की प्रैक्टिस वो जो यूज़ करने के लिए कहा। तो मंगल पांडे, आप सभी वेल नोन होंगे इस नाम से, मंगल पांडे के बारे में सभी ने सुना होगा बच्चों आपने। अगर इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड आप मूवी भी देखना चाहते हैं तो मंगल पांडे बहुत अच्छी मूवी है, जिससे आपको और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन समझ भी आएगी। तो मंगल पांडे जो उस आर्मी में था, यंग सिपॉय था, इंडियन सिपॉय, उसने मना कर दिया कि मैं ये कार्ट्रिज यूज़ नहीं करूँगा। और उसी से उन्होंने राइफ़ल से क्या, वहाँ के जो सार्जेंट थे, ऑफिसर्स थे, उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। तो क्या ब्रिटिशर्स ने से सहना था। ही वॉज अरेस्टेड, ट्राइड एंड एग्जीक्यूटेड, उसे पकड़ा गया, मारा गया और फाइनली उसको जो है हैंग कर दिया, मीन्स हैंग टू डेथ, उसको फांसी की सज़ा दी गई। एंड व्हेन दिस न्यूज़ स्प्रेड द मेनी सिपॉयज स्टार्टेड द रिवोल्ट, और इसी से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और मंगल पांडे जो था पहला शहीद कहा जाता है, हु वॉज नॉन एज फर्स्ट मार्टर्स, दैट वॉज मंगल पांडे। कहाँ मंगल पांडे ने शुरू की थी रिवोल्ट, बैरकपुर नियर कैलकटा। आप कहोगे कि मैम बिगनिंग में तो आपने कहा 10th में, ये स्टार्टिंग जो था एक बार जो इन कार्ट्रिज के अगेंस्ट वो कहाँ पर हो गया था, कैलकटा के अंदर, बैरकपुर में। लेकिन ब्रिटिशर्स ने उसे पकड़ कर अरेस्ट कर लिया और फिर धीरे धीरे ये न्यूज़ आगे बढ़ी थी। तो उन्होंने फिर, हम आगे इसको पढ़ेंगे कि ये अपने टाइम से पहले कैसे शुरू हो गया और कैसे आगे बढ़ा था। So we have discussed the different causes of revolt of 1857. Political causes, economic causes, social and religious causes, military causes, and last one is immediate causes.